السلام علیکم ناظرین، 4 خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ تلنگانہ کے مجالس مقامی کے انتخابات پر سپریم کورٹ میں درخواست داخل، 6 تاریخ کو ہوگی سماعت، انتخابات پر تجسس۔ اتر پیٹ ٹیمز ہاسپٹل کی تعمیر کو جان بوجھ کر تاخیر سے دوچار کیا جا رہا ہے، بی آر ایس لیڈر ہریش راؤ کا الزام۔ ذخائر آب کے انفلو میں مسلسل اضافہ، عثمان ساگر اور حمایت ساگر سے پھر پانی کا اخراج۔ موسیٰ ندی سے لگے علاقوں کے عوام کو چوکس رہنے کا مشورہ، تلنگانہ میں بارش کی پیش قیاسی۔ مادانہ پیٹ پولیس اسٹیشن حدود میں 7 سالہ معصوم بچی کے بے دردانہ قتل کا معمہ حل، ظالم ماموں اور مامی گرفتار، جائیداد کے تنازع پر لی گئی تھی معصوم کی جان۔ ترمل گیری پولیس اسٹیشن حدود میں سائیکل کی دکان میں لگی آگ، کئی سائیکلیں جل کر خاکستر، 8 متصل دکانات بھی زد میں۔ اور امریکہ کے ڈلاس شہر میں حیدرآبادی طالب علم کو گولی مار دی گئی، وزیر اعلیٰ کا اظہار افسوس، لاش کو ملک لانے کے لیے ممکنہ اقدامات کا تیقن۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ، ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کی ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ، کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام، صرف ایک نہیں 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز، ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل، 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت، 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن، beside رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن،
जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एम्यूनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। तेलंगाना के मजालिस मकामी इंतखाबात पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की गई। मजालिस मकामी पर तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल करते हुए वी गोपाल रेड्डी ने 29 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी। जस्टिस विक्रम नाथ की सदारत में इस माह की 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। वाज़ेह है कि तेलंगाना के मजालिस मकामी इंतखाबात के लिए बगल बच चुका है। MPTC, ZPTC और ग्राम पंचायत इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। जुमला 5 मरहले में इंतखाबात होंगे। पहले 2 मरहलों में MPTC, ZPTC, बाकी 3 मरहलों में ग्राम पंचायत इंतखाबात होंगे। इसका ऐलान रियासती इलेक्शन कमीशन ने किया है। BRS पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर हरीश राव ने अपने पार्टी रफ़क़ा के हमराह BRS के दौर में शुरू किए गए कोत्तापेट टिम्स हॉस्पिटल के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने सवाल किया कि 2 साल होने को आ गए हैं, अभी तक टिम्स हॉस्पिटल का क्यों आगाज नहीं हुआ है। हरीश राव ने बताया कि हमने हॉस्पिटल के लिए आराजी हासिल की, टेंडर्स तलब किए और 6 मंजिला इमारत की तकमील भी मुकम्मल की, लेकिन इस हुकूमत ने 2 साल में सिर्फ 5 मंजिलें तामीर की हैं। आज BRS की हुकूमत होती तो यह हॉस्पिटल पिछले साल ही शुरू हो जाता और आवाम की खिदमत कर रहा होता। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत KCR और BRS की नेकनामी को मुतासिर करने के लिए जानबूझकर हॉस्पिटल के तामीरी कामों की तकमील में ताख़ीर कर रहे हैं। हरीश राव का कहना था कि कांग्रेस पार्टी के लीडर्स में दूरंदेशी का फुकदान है। కానీ మనము టిమ్స్ ఎల్బీ నగర్ కట్టిన ఉద్దేశం ఏంది? సూపర్ స్పెషాలిటీ సేవలు అందాలి. ఇలా 400 పడకలు ఇళ్ళకి వస్తే ఈ 1000 పడకల్లో 400 తగ్గిపోయి పేదలకు ఇలా సూపర్ స్పెషాలిటీ సేవలు దొరకకుండా పోతుంది. అటు మహేశ్వరంలో మెడికల్ కాలేజీ రాకుండా పోతుంది. 2 రకాలుగా నష్టం. అదేవిధంగా మా వివేక్ గౌడ్ గారి నియోజకవర్గం కుత్బుల్లాపూర్ లో కూడా KCR గారు 182 కోట్లతో జీవో నంబర్ 162 ద్వారా అక్కడ మెడికల్ కాలేజ్ శాంక్షన్ చేశాం. ఇవాళ మేడ్చల్ జిల్లాకే మెడికల్ కాలేజ్ లేకుండా పోతా ఉంది. దాన్ని తెచ్చి ఏం చేసిండ్రు? టిమ్స్ అల్వాల్లో దాన్ని కలిపేసిండ్రు. అంటే ఇవాళ కుత్బుల్లాపూర్ కాన్స్టిట్యున్సీలో పేదలకు వైద్యం అందుబాటులో లేకుండా దాన్ని తీసుకుపోయి అల్వాల్లో కలిపేసిండ్రు. KCR గారి ఆలోచన ఏంది? అల్వాల్లో 1000 పడకల టిమ్స్ రావాలి, కుత్బుల్లాపూర్ లో మెడికల్ కాలేజ్ తో పాటు 500 పడకల ఆసుపత్రి రావాలి. KCR గారి ఆలోచన ఏంది? ఎల్బీ నగర్ లో 1000 పడకల సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి రావాలి, మహేశ్వరంలో 500 పడకలతో మెడికల్ కాలేజీ రావాలి. అంటే ఇలా మహేశ్వరంలో మెడికల్ కాలేజ్ లేకుండా చేసిండు, కుత్బుల్లాపూర్ లో మెడికల్ కాలేజ్ లేకుండా చేసిండు. ఇవాళ అక్కడ పేదలకు ఆసుపత్రులు రాకుండా ఈ ప్రభుత్వం నిర్ణయం చేసింది. అంటే ప్రభుత్వం కోతలెట్లా పెట్టాలని ఆలోచిస్తున్నారు తప్ప పేదలకు సేవ ఎట్లా చేయాలనే సోయి ఈ రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి లేకుండా పోయింది. ఇవాళ మీ తప్పుడు చర్యల వల్ల మహేశ్వరం ప్రజలకు, కుత్బుల్లాపూర్ ప్రజలకు ఇవాళ తీవ్రమైన నష్టం జరుగుతా ఉంది. गवर्नमेंट विप A श्रीनिवास ने कहा कि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब आते ही हरीश राव को मसाइल याद आ रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शहर की आवाम को गुमराह करने उछल कूद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोत्तापेट टिम्स हॉस्पिटल के करीब हरीश राव और BRS के अरकान असम्बली ने एक शो किया है। हॉस्पिटल की तामीर नहीं हो रही है, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। 10 सालों में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल क्यों तामीर नहीं किया गया, इसका जवाब दें। इख्तिदार हासिल करने के लिए 1 साल पहले टेंडर तलब किए गए थे।
हमारी हुकूमत आने के बाद तामीरी कामों पर खुसूसी तवज्जो दी गई। तमाम हॉस्पिटल्स की तामीर 90% मुकम्मल हुई है। उन्होंने कहा कि 10 साल सरकारी हॉस्पिटल पर कोई तवज्जो न देकर हमको अब सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ए श्रीनिवास ने कहा कि हरीश राव और केटीआर कितना भी उछल कूद कर लें, जुबली हिल्स की आवाम भरोसा नहीं करेगी। कांग्रेस के मुनहरिफ अरकान को नाअहल करार देने के मुतालबा करते हुए स्पीकर से की गई दरख्वास्त पर स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने रुकन असम्बली महिपाल रेड्डी और रुकन असम्बली कृष्णा मोहन रेड्डी से क्रॉस एग्जामिनेशन किया। हफ्ते के दिन अहाते असम्बली में दोनों अरकान असम्बली से क्रॉस एग्जामिनेशन किया। दोनों अरकान की तरफ से वकला भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि इस पूरे मामले में मीडिया को असम्बली अहाते में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। पानी के इनफिलो में इजाफे को देखते हुए उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे उठाए गए हैं। हफ्ते को दोपहर 3 बजे मौसला इतला के मुताबिक उस्मान सागर के 3 दरवाजे 1 फुट तक उठाए गए हैं। 2028 क्यूसिक पानी का मूसा नदी में खराज अमल में लाया जा रहा है। उस्मान सागर की मुकम्मल सतह आब 1790 फुट है, जबकि मौजूदा सतह आब 1799.40 फुट है। हिमायत सागर के 2 दरवाजे 3 फुट तक उठाए गए हैं। 2000 क्यूसिक पानी का अखराज अमल में लाया जा रहा है। हिमायत सागर की मुकम्मल सतह आब 1763.50 फुट है, जबकि मौजूदा सतह आब 1763 फुट बताई गई है। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 24 घंटों में बारिश की पेशकयासी की गई है। बाज़ अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। उस्मान सागर और हिमायत सागर से पानी के खराज के तनाजुर में नदी से लगे नशेबी इलाकों के अवाम को चौकस किया जा रहा है। हैदराबाद में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की मीडिया कमेटी के सदर नशीन एस राम मोहन रेड्डी ने कहा कि प्रशांत किशोर एक सियासी चोर हैं और वो एक प्रीपेड रिचार्ज की तरह कितना रिचार्ज करेंगे वो इतना ही बात करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की आवाम की बहबूद के लिए उनकी 50 साल जिंदगी में कम से कम 15 मिनट बात नहीं की और बिहार के लिए कुछ नहीं किया है, इसलिए उनको गुफ्तगू को संजीदगी से लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ इंतखाबात की हिकमत अमली तैयार करके रकम कमाते हैं, वो किसी पार्टी को कामयाब नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि उनकी हैसियत इतनी नहीं है कि वो वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद करें। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी के खिलाफ प्रीपेड रिचार्ज प्रशांत किशोर कितना भी बात कर लें वो एक जोक होगा। हैदराबाद के कोंडापुर और श्रीलिंगमपल्ली में हाइड्रा की तरफ से हफ्ते को गैरमजाज तामीरात के खिलाफ इनेदामी कार्रवाई अंजाम दी गई है। बताया गया है कि दोनों मकामात पर हाइड्रा ने 36 एकड़ सरकारी आराजी पर से गैरमजाज कब्जों को बर्खास्त किया है। इस आराजी की मालियत 3600 करोड़ रुपए बताई गई है। इतला है कि कोंडापुर आरटीए ऑफिस के पास सर्वे नंबर 59 पर गैरमजाज कब्जा था। अदालत के हाईकोर्ट के पास हाइड्रा की तरफ से हफ्ते को यह कार्रवाई अंजाम दी गई। सरकारी आराजी पर गैरमजाज शेड्स लगा दिए गए थे, ताहम उन्हें मुनहदिम कर दिया गया। मूसा नदी में पानी के बहाव की वजह से मुतासरा खानदानों में मजलिस की इमदाद का सिलसिला जारी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मुगल नगर बी में 20 खानदानों में राशन किट्स के अलावा बर्तन, सिलेंडर और दीगर ज़रूरी अशिया तकसीम की गईं। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने बताया कि मूसा नदी में पानी के बहाव की वजह से कारवान के बाज़ इलाके मुतासिर हुए थे। कई खानदानों का ज़रूरी सामान पानी में बह गया था। बैरिस्टर ओवैसी ने इन खानदानों में ज़रूरी सामान और राशन किट्स की तकसीम की हिदायत दी थी और इसी सिलसिले में आज इन अशिया की तकसीम अमल में आई। कारवान के कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर इस मौके पर मौजूद थे। सारे हैदराबाद को फिक्रमंद और शर्मसार कर देने वाले छावनी कत्ल वाक़े में पुलिस ने मख्तूला 7 साला उम्मे हानी सामिया के सगे मामू और मुमानी को कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। सगी बहन की जायदाद हड़पने के लिए समी नामी हैवान सिफत शख्स ने अपनी बीवी यास्मीन के साथ मिलकर उम्मे हानी के हाथ बांधकर
پانی کی ٹانکی میں پھینک کر ہلاک کر دیا۔ مقامی عوام اور مجلسی قائدین نے فاسٹ ٹریک عدالت کے ذریعے عبرتناک سزا کا مطالبہ کیا ہے۔ انسانیت کو شرمسار کر دینے والا ایک واقعہ جس میں 7 سالہ کمسن لڑکی کو بے رحمی کے ساتھ قتل کیا گیا تھا۔ پولیس مادنا پیٹ نے اسے حل کرتے ہوئے مقتولہ کے سگے ماموں اور ممانی کو گرفتار کیا ہے۔ ساؤتھ ایسٹ زون کے ڈی سی پی سری کانت نے میڈیا کو بتایا کہ میر سمی نامی درندہ صفت شخص نے مقتولہ کے والدین سے ان کا مکان خریدنے کے لیے معاہدہ کیا تھا اور رقم دینے سے ٹال مٹول کر رہا تھا۔ اس پر مقتولہ ام ہانیہ سمیہ کے والدین رقم کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے۔ محض اتنی سی بات کو بہانہ بنا کر میر سمی اور اس کی اہلیہ یاسمین بیگم نے اپنے ہی ماں جائی بہن کی اولاد کو بے رحمی کے ساتھ ہاتھ پیر باندھ کر پانی کی ٹانکی میں پھینک دیا۔ واضح رہے کہ ہمارے سارے معاشرے کو شرمندہ کر دینے والا اس واقعے کے خلاف عوامی برہمی بھی دیکھی گئی تھی۔ بے شرمی تو یہ دیکھی گئی کہ دونوں قاتل میاں اور بیوی لڑکی کی گمشدگی کے بعد تالاشی اور لاش ملنے کے بعد تک بھی ڈرامہ بازی کرتے دیکھے گئے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ حیدرآباد کے مسلم معاشرے میں خونی رشتوں کے درمیان اس قدر نفرت اور سنگ دلی نہ جانے کہاں سے آ گئی کہ ماموں جسے ماں کا منہ کہا جاتا تھا وہی اپنی سگی بہن کی گود اجاڑنے کا ذمہ دار ثابت ہوا۔ پولیس نے قاتل جوڑے کو جیل بھیج دیا ہے، لیکن مقامی اراکین اسمبلی احمد بلالہ اور جعفر حسین معراج کے علاوہ مقامی عوام کا بھی سخت دباؤ ہے کہ فاسٹ ٹریک عدالت کے ذریعے قاتلوں کو عبرتناک انجام تک پہنچایا جائے۔ 30 تاریخ کو یہاں شبانہ سلطانہ بول کے وائف آف عظمت اللہ فاروقی انہوں سنتوش نگر میں رہتے، ان کا والدہ کا مکان یہاں مادنا پیٹ چھاونی میں ہے۔ انہوں 30 کے دن ان کے بیٹی کو چھوٹے بیٹے کو لے کے ان کے والدہ کے گھر کو آئے صبح کے ٹائم میں آگے دوپہر کے ٹائم تک تھے۔ دوپہر میں کچھ کام سے باہر گئے، جا کے شام میں واپس آنے کے بعد دیکھے تو 7 سال کا ان کی بیٹی ام ہانی سمیہ 7 ایئرس وہ بیٹی نہیں دکھی۔ وہ لوگ پورے ڈھونڈ کے گھر میں اطراف ڈھونڈے، 9:30 تک ڈھونڈ کے نہیں ملے تو 9:30 بجے آ کے پولیس اسٹیشن میں کمپلینٹ کرے بچی مسنگ ہے بولے۔ 7 ایئرس گرل ہے، اس لیے امیڈیٹلی سرکل آف کڈنیپ کیس رجسٹر کرے۔ رجسٹر کرنے کے بعد ایک 6 ٹیم امیڈیٹلی فارم کر کے لوکلٹی میں اب وہ گھر سے اسٹارٹ ہو کے ایک 3 ٹیم ادھر دونوں طرف سرچ کر لیتے، جا کے پورا لوکلٹی آج رات تک تھرولی سرچ کر کے پوچھ تاچھ کرے اور کہیں بھی بچی کو دیکھے سر کا یا باہر آ رہے گھوم رہے تو کہیں جا رہے سر کو دیکھے سر کا کوئی بھی نہیں پتا ہے۔ پورا گھر نیچے سے اوپر تک سرچ کر لیتے گئے تو اوپر چھت پہ واٹر ٹینک تھا، وہ ٹینک اوپر ڈھکن لگا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک پتھر بھی رکھے سے تھا، وہ نکال کے تو اس میں چیک کرے تو اس کے اندر بچی کی لاش نکلے۔ اب اس کا وجہ کیا ہے کیوں کرے بول کے پوچھے تو یہ لوگوں کو ایک لاسٹ نومبر میں 3.5 سال کی بیٹی تھی، وہ بچے کا انتقال ہو گیا، ہیلتھ خراب تھا، وہ ہیلتھ خراب ہو رہنے کی وجہ سے وہ ٹریٹمنٹ کرے بٹ نہیں بچی لاسٹ نومبر سمی کی بیٹی لاسٹ نومبر میں گزر گئی۔ اب یہ لوگوں کو شک تھا کہ وہ ایل ہیلتھ اور ڈیتھ یہ لوگ کچھ کالا جادو کرے بول کے شک تھا یہ لوگوں کو، بٹ وہ بول نہیں سکتے، پوچھ نہیں سکتے، وہ نہیں پوچھے بٹ دل میں وہ تھا وہ رنج۔ اب وہ رکھ لے کے اوپر سے ہر 2 دن ایک دن اماں بیٹی تو بچے سنتوش نگر سے قریب والا گھر بول کے یہاں رہتے گرانڈ مدر کرنے چھٹیاں، اب یہاں کی کھیل رہے کر رہی۔ اب یہ بچی بھی سمیہ کی 7 ایئرس کی تھی بٹ اچھا ایکٹیو تھی۔ جس دن ان کا قتل ہوا اس دن بھی شام میں آنے کے بعد گرانڈ مدر کے ساتھ سیلفی فوٹوز ویڈیوز نکالی، وہ اچھا ایکٹیو تھی۔ اب آگے ان کے گھر میں ان کے بچوں کے ساتھ کھیلنا اور یہ لوگوں کا اور دل جل رہا تھا وہ دیکھ کے۔ اوپر سے اب وہ چھاونی میں جو گھر میں رہ رہے لوگ وہ گھر یہ لوگ پورے 5 بھائیاں 2 بھائیاں 5 سسٹر ہیں، یہ لوگ 7 جنے یہ سمیہ علی اور ان کو باقی بھائی بہنوں کو میں پیسے دیتا ہوں، یہ گھر میں بول کے ان کے والدہ سے انہوں نے گھر لکھا لیا، سمیہ علی لکھا لیا۔ اب اس کے وجہ اس کے ایکسچینج میں 1,30,000 یہ لوگ کو دیا
ये कंप्लेंट शबाना सुल्ताना को 31 लाख 30,000 दिया और देना है उन्हें पैसे. अब वो पैसे देना पड़ रहा है, ये लोग आके यहाँ कर रहे हमारे बच्ची को ऐसा करे बोल के वो दिल में था. एलबी नगर के साकिन 28 साला नौजवान को नामालूम शख्स ने अमेरिका के शहर डलास में गोली मारकर हलाक कर दिया है. तफसीलात के मुताबिक पी चंद्रशेखर हिंदुस्तान में बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की तालीम मुकम्मल करने के बाद मास्टर्स के लिए डलास की यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे. हफ्ते के दिन जब वो गैस स्टेशन पर काम कर रहे थे, नामालूम शख्स ने उन्हें गोली मार दी. महलूक के अफराद खानदान ने हिंदुस्तानी हुकूमत और तेलंगाना की हुकूमत से अपील की है कि चंद्रशेखर की नाश को हैदराबाद लाने के लिए अमेरिका में सिफारतखाने से रब्ता करें. दूसरी तरफ साबिक वजीर हरीश राव ने चंद्रशेखर की क़यामगाह पहुंचकर उनके अफराद खानदान से इजहार ताज़ियत किया है. हरीश राव ने भी मरकजी वजारत ख़ारजा से इस सिलसिले में तवज्जो देने की अपील की है. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी नौजवान तालिब इल्म की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया और मुमकिना मदद का तयक़ुन दिया. वज़ीर आला ने यह भी कहा कि चंद्रशेखर की लाश को हैदराबाद लाने के लिए मुमकिना इक़दामात किए जाएंगे. तिरमलगिरी पुलिस स्टेशन हदूद के लोथकुंटा में साइकिल की दुकान में आग लगने का वाक़या पेश आया. मुतासिरा दुकान से मुत्तसिल 8 दीगर दुकानें भी आग की जद में आ गईं. दुकानों के शटर से धुआं निकलता हुआ देखा गया. सुबह के औक़ात में यह वाक़या पेश आया. इस वाक़े में बड़ी तादाद में नई साइकिलें जलकर खाकस्तर हो गईं. इब्तिदा में मुकामी अवाम ने आग बुझाने की कोशिश की, फिर पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले को तलब किया गया. फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है. किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है. भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है. दशहरे के पेश नज़र दुर्गा मूर्ति की निमज्जन के दौरान सरूर नगर तालाब के पास क्रेन उलट गया. तहम इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ. दूसरे क्रेन की मदद से इसे हटाया गया. वेस्ट जोन ट्रैफिक हदूद में आज ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बिना हेलमेट, रॉन्ग साइड, बिना नंबर प्लेट और दूसरे कवायद की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया. जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स के इलाकों में खुसूसी मुहिम चलाई गई. ट्रैफिक डीसीपी राहुल हेगड़े और एसीपी हरिप्रसाद की निगरानी में इस मुहिम के दौरान कवायद की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ चालान किया गया. शहर के नवाही इलाके केसरा में तमिल बाशिंदों और मुकामी लोगों के दरमियान तनाज़ा बढ़ता जा रहा है. बताया गया है कि हाल ही में पार्किंग को लेकर फरीक़ैन के दरमियान झगड़ा हुआ था. बताया गया कि मामूली बात को लेकर हुए झगड़े में पंचायत भी तलब की गई थी. बाद में दोनों ग्रुप मुतसादिम हो गए और लाठियों का भी इस्तेमाल किया गया. पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है. आंध्र प्रदेश के चित्तूर में दलित नाबालिग लड़की की मुबैना इस्मत रेज़ी के मुलज़िमीन को गिरफ्तार किया गया और जब उन्हें अदालत में पेश किया जाने वाला था, मुलज़िमीन को पैदल बगैर निक़ाब के अदालत में ले जाया गया. अवाम की बड़ी तादाद ने इन मुलज़िमीन का मुशाहिदा किया. बताया गया है कि मुलज़िमीन तन्हा मकामात पर ख़वातीन जोड़ों के वीडियो बनाकर भी उन्हें ब्लैकमेल किया करते थे. साबिक़ में भी इन मुलज़िमीन के खिलाफ केसेस दर्ज बताए गए हैं. आंध्र प्रदेश के पडेरू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स मोबाइल फ़ोन की रोशनी में मरीजों का इलाज करते हुए देखे गए. बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बरक़ी की अदम सरबराही की वजह से डॉक्टर्स को मोबाइल फ़ोन की रोशनी का इस्तेमाल करना पड़ा. और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर. क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ. जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे. क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद. हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस. तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम. सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज. शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है. 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन. हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास. 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स. क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता. आपका ख्वाब अब है हकीकत.
अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब। ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना के मजालिस मकामी के इंतखाबात पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल, 6 तारीख को होगी समाअत। इंतखाबात पुरतजस्सुस। कोत्तापेट टिम्स हॉस्पिटल की तामीर को जानबूझकर ताकीर से दो चार किया जा रहा है, बीआरएस लीडर हरीश राव का इल्जाम। ज़खायर आब के इनफिलो में मुसलसल इजाफा, उस्मान सागर और हिमायत सागर से फिर पानी का अखराज। मूसा नदी से लगे इलाकों के अवाम को चौकस रहने का मशवरा, तेलंगाना में बारिश की पेश कयासी। मादानापेट पुलिस स्टेशन हदूद में 7 साला मासूम बच्ची के बेदर्दाना कत्ल का मुअम्मा हल, जालिम मामू और मामी गिरफ्तार, जायदाद के तनाजे पर ली गई थी मासूम की जान। तिरमलगिरी पुलिस स्टेशन हदूद में साइकिल की दुकान में लगी आग, कई साइकिलें जलकर खाकस्तर, 8 मुत्तसिल दुकानात भी जद में। और अमेरिका के डलास शहर में हैदराबादी तालिब इल्म को गोली मार दी गई, वजीर आला का इजहार अफसोस, लाश को मुल्क लाने के लिए मुमकिना इक़दामात का तयक़्क़ुन। और नाज़रीन, इसी के साथ 4 TV खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4 TV। खुदा हाफिज़।